उसके बाद फिर आपने आरबीआई क्यों कंटिन्यू नहीं किया, आप एसबीआई पीओ पे क्यों चली गई? वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन या ऐसा लगा कि अभी एसबीआई पीओ की अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको दे लो? अगर, वैसे तो अब आपका हो गया है, आई एम टॉकिंग ऑन अ नेगेटिव साइड, अगर नहीं होता तो पिछले साल के कंपैरिजन में इफ यू एनालाइज व्हाट डिड यू डू डिफरेंट? I would like to introduce Ms. Prachi. She has cleared RBI grade B 2023. Let's have a big round. This is an achiever badge for you. So this is an achiever badge which we give to everyone who cracks this coveted competitive exam. So this is for you. Thank you so much, sir. You can have it on your. Yeah, sure, sure. So we will just celebrate your success by cutting a small cake. Okay. Then we will formally go down to have your interview. Can I call my mother, please? Sure. मम्मा, अरे आजा आओ तो। अरे यार, आइए। अच्छा मैं मदर से वर्क्स विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आओ तो। उनकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में, कीड़ा ही है मुझे। मदर, फादर, ब्रदर। हाँ। अरे आजा 2 मिनट की बात है, आओ। और and she told me, I mean, I was having an informal interaction with her yesterday. So she told me that her family, mother, father, and especially brother, they really played a very huge role in the success what she has achieved today. So, I mean, everyone's family is supportive, but I mean, she had some extra praise for her family. Yeah, actually, मतलब एग्जीक्यूशन ही बस मेरा था, बाकी मतलब पुश जो होता है कि नहीं तू कर लेगी वो पूरा फैब्रिक का ही रहा है। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ शायद। आ जाओ, चलो सर प्लीज। एक्चुअली आई नो ऑफ आरबीआई ग्रेड बिकॉज ऑफ एडिटर। आई टोल्ड यू दिस। कोई बात नहीं। रख दो प्लीज। Small gift from our side. Hello everyone. Today I have with me Prachi Dhurandhar for this RBI Grade B Topper Success Series. If I want to tell you about Prachi, इन्होंने 3rd attempt में finally RBI Grade B फोड़ा है और इनकी journey it was not easy at all. She could have n reasons to believe that she would not make it, as she was not having a finance background, she was a working aspirant, she was not from a fancy college. But she conquered all these myths just with sheer hard work. So Prachi, first of all, congratulations. Thank you. And I think we cannot describe this success in words, but how are you feeling now? Unbelievable actually. When the results came, I was in the office only. तो उस समय भी जब मैंने कॉल किया सबको तो everybody was like कि अरे बाप रे ये तो मतलब बहुत ही वो, क्योंकि last time also I gave the interview, couldn't make it. तो फिर एक बार फेलियर देख लेते हैं सब लोग, तो लोगों को लगता है कि फेल होना भी हो सकता है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि once you have given the interview, आपके आसपास सबको लगता है इंटरव्यू तक पहुंच गए तो फिर तो फाइनल सिलेक्शन होना ही होना है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस बार जब मैंने बताया सबको रिजल्ट तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि कमाल ही हो गया क्योंकि द प्लेस फ्रॉम विच आई बिलोंग, तो वहाँ पे ये बहुत अनकॉमन है। आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जानते ही बहुत कम लोग हैं, तो ये बहुत ही अनकॉमन है। तो मैंने फैमिली मेंबर्स को बताया, सबको बताया, और नाउ दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, तो बहुत सही लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ तो किया है। It's totally unbelievable till the time you achieve it, और हमेशा हमें सेल्फ डाउट रहता है, बट अचीव करने के बाद एक फीलिंग आता है ना कि नहीं मेरे में दम था। हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आता है कि इतना मतलब कुछ तो भी कर ही सकते हैं जीवन में ऐसा। चलो प्राची, लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड। टेल मी ब्रीफली अबाउट योर बैकग्राउंड, मतलब एजुकेशन, कहाँ काम किया है, और थोड़ा सा फैमिली के बारे में। ओके,
So I hail from Raipur, Chhattisgarh. Starting from the school till the first job, that was SBI PO. I was in Chhattisgarh only. I have never lived away from my family by then. फिर उसके बाद तो I got into ECGC. I'm working as a executive officer in ECGC, posted in Jaipur. I have done my schooling from Salem English School, Raipur. I have done college from Government Engineering College, Raipur. Then, as I told, I got into SBI. I was posted in Bilaspur. I have worked in SBI for 6 months. It's been 6 or 7 months in ECGC, and now I'll be joining Reserve Bank of India soon. And what do your family members do? Your father, mother? So my father works in LIC. My mother is a state civil servant. As in, she works as a supervisor in ICDA, that is Integrated Child Development Scheme, which comes under the Ministry of Women and Child Development. My brother is a assistant director in Ministry of Tribals, again through state PCS. So everybody works. तो मतलब एक बात बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा तो है आपकी फैमिली में. Actually, although I'm an engineer and that to triple E, तो scope of the engineering is a lot in this field. But still, I never thought of working in a private sector. I was always like कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है. पता नहीं क्यों, ऐसा कोई रीजन कोई पूछेगा तो मैं नहीं बता सकती. Was it due to family pressure or something? No, या फिर no, it was no. like ingrained कि यार मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है. Actually, I've been very fortunate कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं किया है कि क्या करना है, क्यों करना है. सारे डिसीजंस, मेरी लाइफ डिसीजंस मेरे ही रहे हैं. तो इस बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि घर वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब करना है. बस मुझे ही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है. वो उसका कोई रीजन नहीं दे सकती. रीजन नहीं होता है. And Prachi, you told me while we were having some initial discussion कि when she got her first government job, which was SBI PO, your father cried, and you told me that was kind of unusual. So tell me something about that incident. मतलब क्या वहाँ हो रहा था, वो क्यों रोए और आपको कैसा लगा? It must have been an emotional moment. Yes. Actually, when the results came, I came out of my room and told my mother and my father that I made it to the SBI PO. So my father literally, he stood up from the sofa. He literally took a round like dancing, and he cried. He literally cried, and me and my mother like, what is why is this happening? But maybe वो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा overwhelmed हो गए थे उससे. ऐसा होता है ना कि पता तो है ही पेरेंट्स को कि बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, पर कुछ भी अगर आपका एग्जाम क्लियर हो, किसी भी चीज पे सक्सेस हो, तो ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. तो मे बी वो बहुत ओवरवेल्म थे कि ईश्वर ने दोनों बच्चे पे कृपा बनाई है कि उसके 1 साल पहले ही भैया का स्टेट पीसीएस में हुआ था, फिर उसके बाद मेरा हुआ. तो मे बी ही वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि चलो फाइनली कि दूसरी बच्ची भी लग गई है कहीं, इसलिए शायद रोए होंगे वो. भगवान का हाथ उसके साथ है. हाँ. मेहनत है. हाँ, पर सही बोल रहे हैं आप. पर वो हर बार ही हो ये जरूरी नहीं है. तो एक डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑलमाइटी कि उन्होंने मेहनत किया है, हमने तो साथ भी दिया है. मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं. ये ऐसा होता है, मतलब मुझे भी याद है जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में. सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर, he was like yes and he just put on his shoes and he went downstairs and we were like कहाँ जा रहे हो? उस टाइम मोबाइल नहीं होता था. So he came after 20-25 minutes के मंदिर गए थे. हाँ, मैं भी एक्चुअली आई वॉज पोस्टेड इन जयपुर, राइट. सो आई हैड माई इंटरव्यू इन कोलकाता. तो इंटरव्यू देने से पहले आई वेंट टू मोती डोंगरी मंदिर है गणेश जी का, जयपुर में बहुत फेमस है. मैं वहां गई थी. फिर इंटरव्यू देने के बाद भी मैं गई थी. फिर रिजल्ट आया, तो उसके बाद मतलब रिजल्ट आया, आई वॉज इन ऑफिस, तो मैं उसके बाद डायरेक्ट ही मोती डोंगरी के मंदिर गई थी, गणेश जी के मंदिर गई थी. और मतलब आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन दैट वे. बाकी फैमिली का क्या रिएक्शन था फैमिली में जब आपने आरबीआई की न्यूज सुनाई कि मेरा आरबीआई ग्रेड बी में हो गया? वर दे अवेयर कि आरबीआई ग्रेड बी एक बड़ी पोस्ट है एसबीआई पीओ से? नॉट रियली. वो नहीं, उनको नहीं पता है. मतलब मुझे लगता है कि टिल डेट मेरी फैमिली में लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता एक्सेप्ट फॉर माई ब्रदर की क्या है ये. पर उनका ऐसा था कि मैं हमेशा से आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहती थी. तो अभी ऐसा हुआ कि वो जो चाहती थी वो उसे मिल गया, इसलिए सब इतने खुश हैं. हमारी खुशी इसी में है. हाँ, कि बेटी को जो चाहिए तो वो मिल गया. हाँ, एक्चुअली पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी, सबने अपने अपने ऑफिस में पार्टी दे दी. तो वो सिर्फ इसी से खुश है कि मैं जहाँ चाहती थी वहां मैं पहुंच गई. तो अब मैं फाइनली उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, बाकी चीजें कर पाऊंगी लाइफ में. तो इसलिए शायद वो इतने ज्यादा खुश हैं. So as Prachi told you that family played a huge role in her selection. She was overwhelmed by their support. तो एक इनकी फैमिली फोटोग्राफ देखते हैं मदर और फादर के साथ, और थोड़ा देखते हैं. तो फोटो लाइए प्लीज. तो प्राची, ये फोटो कब की है?
ये इसी साल की है, दिवाली की है, हम्म। जब वी ऑल गॉट रेडी बिफोर द पूजा, तब की है, घर की है। तो उस टाइम तो आपको लग रहा होगा कि अभी रिजल्ट आने वाला है, ये दिवाली और बड़ी बन जाए। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, लास्ट ईयर दिवाली के टाइम ही रिजल्ट आया था, तो मेरी दिवाली स्पॉइल हो गई थी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो इस बार मेरे को ऐसा था कि चलो दिवाली बीत जाए और उसके बाद आएगा तो भी ठीक ही है। वैसे आई न्यू कि रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, क्योंकि इंटरव्यूज ही 8 दिसंबर तक चले हैं, तो आई न्यू कि नहीं आएगा। तो इस बार आई वाज कि दिवाली तो अच्छी बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और फोटो देखते हैं। एक हमारी जर्नी में ना हमेशा एक स्पेशल हीरो होता है जो हमें हमेशा गाइड करता है, मोटिवेट करता है, और प्राची की जर्नी में वो हीरो रहे हैं उनके ब्रदर, जो उन्होंने बोला अभी असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। तो ये फोटो देखते हैं। प्राची, जो ये आपकी फोटो है आपके ब्रदर के साथ, तो क्या नाम है आपके ब्रदर का? मेरे भाई का नाम है प्रतीक धुरंधर। तो ये फोटो कब की है? ये फोटो आई थिंक एक्चुअली मेरे जो भाई हैं वो स्टेट पीसीएस निकाले, उन्होंने भी 3 अटेम्प्ट लगाया, उनका भी 3 अटेम्प्ट लग गया, मतलब ही गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पर पोस्ट उनको वैसी नहीं मिली। तो 3rd अटेम्प्ट में ही गॉट इनटू द क्लास 2 ऑफिसर व्हिच इज द टॉप रैंक इन द स्टेट पीसीएस। तो उसके बाद में उनकी वो सक्सेस सेलिब्रेट करने हम एक बहुत ही लैविश रेस्टोरेंट गए थे, ऑल 4 ऑफ अस, एंड दैट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर अस बिकॉज हम कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दैट वाज वेरी अनयूजुअल। माय मदर केप्ट स्कोल्डिंग अस कि कहाँ पैसे खर्चे कर रहे हो तुम लोग, कहाँ ले आए, इससे अच्छी सब्जी मैं बना दूंगी। तो ये उस समय की ही फोटो है ये। एवरी मदर इज लाइक दैट। तो आपके ब्रदर ने, मतलब ही इज अ हीरो ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी, तो कैसे उन्होंने गाइड किया फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल? एक्चुअली ही वाज द वन हु टोल्ड मी कि 10th और 12th का एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस क्या है। लाइक 10th और 12th के एग्जाम में यू ओनली हैव टू पास, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें देयर कैन नेवर बी अ पॉइंट जब आप बोल सके कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। मुझे नहीं लगता, मेरा ये मानना भी है कि एवरी डे जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ही वाज द वन हु टोल्ड मी कि एक तो ये कि ये एक ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और हो गया, तो कैसे अप्रोच करना है। सेकेंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, ही टोल्ड मी of attempting the paper, the way of attempting the paper. Also, having said that कि he is from the state pieces, तो उन्होंने मुझे बताया कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया ये सारी। और उन्होंने एक और बात मुझे बताई थी कि मोमेंटम का क्या वो है, लाइक इफ यू आर नॉट स्टडिंग 24/7, लाइक nobody can, but you have to be in the phase of examination 24/7. Like you cannot just party at night, study in day and अब ऐसा सोच लो कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। करते होंगे कुछ लोग, पर मुझे लगता है कि फॉर समबडी लाइक मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैं पढ़ भी लूँ, बाकी सब भी कर लूँ। तो उन्होंने बताया कि मोमेंटम में कैसे रहना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से हटना है, वो सब उन्होंने समझाया मुझे। आई थिंक शी इज रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ फैमिली। एब्सोल्युटली। तो प्राची, जब इतनी अच्छी फैमिली होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं हमसे, बिकॉज वो हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें, और हमें भी लगता है कि हम उनके लिए अच्छा करें, बिकॉज दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर अस। तो आपने मुझे बताया कि यू आर अ डिसेंट स्टूडेंट, मतलब 80-85% कैटेगरी वाले थे, बट आफ्टर 12th योर फैमिली वाज एक्सपेक्टिंग यू टू क्लियर NIT, एनी गुड कॉलेज, जो कि हर माँ बाप एक्सपेक्ट करता है कि उनके बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, अच्छे कॉलेज में चले जाएं। बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक NIT। शायद आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने मेहनत नहीं की, बट उसके बाद फैमिली में क्या माहौल था? आई मीन व्हेन दे केम टू नो कि यार एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ, लेकिन रिजल्ट यहाँ, तो वाज इट लाइक कि उनको ऐसा लगा कि यार क्या हो गया ये, मतलब ये तो मतलब उल्टी ही होगी चीज़, या फिर ये तो कुछ क्या ही करेगी अब लाइफ में? क्या फीलिंग थी? और उनकी फीलिंग से ज़्यादा आपके अंदर क्या फीलिंग थी? क्योंकि पेरेंट्स तो फीलिंग फिर भी छुपा लेते हैं। एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ फील नहीं होने दिया, कि मतलब वो बहुत ही नॉर्मली थे मेरे साथ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर डीप डाउन आई न्यू कि मैंने बहुत डिसअपॉइंट किया है उनको, क्योंकि आई सॉ कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई में लगाया है। मतलब सब कुछ ही सेक्रीफाइस करके हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, मतलब उस टाइम में हम नहीं घूमने जाते थे, और मतलब पेरेंट्स ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके जितना हम कर सकते थे उससे ज्यादा ही सब कोचिंग्स में, हमको पढ़ाने में, सब में खर्च किया है। और मुझे ये पता रियलाइज होने लगा था कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी फैमिली की मुझसे, मैंने उनको बहुत ज्यादा लेट डाउन किया। तो वो उन्होंने तो फील नहीं होने दिया, पर मुझे पता था कि मैंने आई हैव डिसअपॉइंटेड देम। सो आपने क्या उसके बाद मतलब कुछ एक यू टर्न लिया कि मुझे अब कुछ बनना है, कि इट वाज लाइक कि अभी देखेंगे, चिल, अभी चिल मोड ऑन है?
कॉलेज तक तो पूरा ही चिल मोड ऑन था। कॉलेज तक तो आई वाज लाइक, मतलब आई हैव डन एवरी मिस्टेक, मतलब मैंने बहुत कॉलेज तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। कॉलेज के बाद फिर जब अब ऐसा हो जाता है कि अब, क्योंकि जब तक आप कॉलेज कर रहे हैं आपके पास एक्सक्यूज है कि क्या कर रहे हो, कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं। और उसके बाद जब कॉलेज हो जाता है अब क्या कर रहे हो, तो जब आप बोलते हो ना किसी को कि आई एम प्रिपेयरिंग, सो नोबडी लुक्स एट इट लाइक कि प्रिपेयरिंग अच्छा, मतलब कोई का टाइम पास कर रहे हैं। तो कॉलेज के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो उतना अच्छा से नहीं परसीव किया जाता है। तो उसके बाद में जब ऐसा आता है एक टाइम कि अब ये रेकलेसनेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, अब आपको कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, वरना फिर वही खिसी पिटी सी जिंदगी है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ओनली, यस एक्चुअली। और वो जो एक फ्रीडम है ना, टू बी एबल टू स्पेंड हाउ मच, और कहीं पे भी कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, अपने भाई के लिए कर सकते हैं, वो जो एक फ्रीडम है वो मुझको चाहिए थी। तो मैंने वो अपने आप में मैंने वो टर्न ले लिया कि बात, मतलब दोस्ती यारी कम कर दी, घूमना फिरना कम कर दिया। तो वो कॉलेज के बाद ही किया मैंने। अच्छा, एक और बात बताओ प्राची, आई मीन कॉलेज के बाद ठीक है आपने पढ़ाई की, शी क्रैक्ड SBI PO, फिर उन्होंने ECGC भी क्रैक किया, आई मीन यू आर वेल सेटल्ड इन अ गुड लाइफ, गुड जॉब, अच्छी खासे कमा रहे थे, मतलब आई मीन द नेक्स्ट टारगेट वाज ऑब्वियसली लाइक RBI कर सकते हो या फिर कुछ UPSC वगैरह कर लो, विच इज लाइक, मतलब हमें पता है कि टफ है, मतलब एक अच्छी खासी जॉब्स, अच्छी सैलरी, अच्छा बॉस, और एक कहीं ना कहीं वहाँ एक सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, लाइक नो कि बेटा अब क्या आगे पढ़ रहे हो, गेट मैरिड, गेट सेटल्ड। वाज देयर एनी काइंड ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन यू के, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स डू नॉट डिस्करेज यू, बट कहीं था कि यार क्या अभी, मतलब अब पढ़ तो लिया, इतना इंजीनियरिंग कर ली, ये SBI कर लिया, ECGC कर लिया, अब शादी करके सेटल हो? प्रेशर नहीं था, प्रेशर नहीं, या एक्चुअली प्रेशर तो नहीं था, पर जब मेरे को ऐसा देखते थे बाकी लोग कि मैं जॉब में हूँ 8 घंटे, फिर मैं आ रही हूँ, फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेट नाइट पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं कुछ घंटे सो रही हूँ, फिर मैं जॉब में जा रही हूँ, तो जब मैं इतनी वो मेरे को देखते थे कि व्हाट इज द नीड, दे यूज्ड टू थिंक कि क्या ही जरूरत है, अब सही तो है, लाइफ जियो। तो वो मुझे बोलते थे कि अब हो गया, बस अब मत पढ़ो अब बहुत हो गया, अब जियो, लाइफ जियो, घूमो फिरो, तो ऐसा बोलते थे। पर ऐसा प्रेशर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ तक नहीं आने दिया, उन पे आता होगा तो आई डोंट नो, मुझ तक नहीं आने दिया। वेल, प्राची ने बहुत फन किया है अपनी जॉब में। इनके एक फोटो दिखाते हैं हम ट्रेनिंग की, ये ट्रेनिंग डेज की इनकी फोटो है SBI PO की। तो प्राची, मतलब ये ट्रेनिंग जब आप कर रहे थे, बड़ा फन टाइम मोमेंट होता है, तब भी ये कीड़ा था RBI का, या ट्रेनिंग होने के बाद जब जॉब में गए तब कीड़ा आया, देखा कि यहाँ पे इतनी चीजें आसान नहीं है तो RBI जाना है? नहीं, एक्चुअली ये जो फोटो है ये FTP 1 की है, SBI PO की जब मेरी ट्रेनिंग थी, SBFI चेतना इंदौर में है वो। तो एक्चुअली यही वो ट्रेनिंग है जिसके जस्ट 2-3 दिन बाद मेरा RBI ग्रेड बी का इंटरव्यू था, प्रीवियस अटेम्प्ट का, और मैंने बहुत मजे किए, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की उसका फिर रिजल्ट भी आया कि सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, पर ये उस टाइम की फोटो है, बट आई डोंट रिग्रेट इट नाउ, आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विद दीज पीपल, दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट, अभी भी दे आर सपोर्टिंग मी, तो नो रिग्रेट्स एज ऑफ नाउ। एंड यू प्रिपेयर्ड विद द जॉब, ठीक है, और देखो जॉब जैसी भी हो, ECGC माइट नॉट बी दैट हेक्टिक लाइक SBI, बट 8 घंटे तो आपको ऑफिस जाना ही है, और उसके बाद आके पढ़ना, यू टोल्ड मी दैट यू वर टारगेटिंग कि मैं 6 घंटे पढूं, एंड आई नो वो नहीं होता है, मतलब 8 बजे आकर आप 6 घंटे कहाँ पढ़ लोगे, मतलब वो तो रोबोट ही पढ़ सकता है इतना। तो कभी ऊपर नीचे होता होगा टाइमिंग, तो क्या कोई गिल्ट फीलिंग आती थी? और ओवरऑल आपने कैसे मैनेज किया? मतलब यार, मतलब राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपने पर्सनल भी की, प्रोफेशनल भी की, और एक स्टूडेंट लाइफ भी मैनेज की, कैसे किया? हाँ, ये मतलब जो गिल्ट वाली बात है, एक्चुअली गिल्ट तो बहुत होता था मुझे कि क्योंकि आई लव टू स्लीप, आई लिटरली लव टू स्लीप, तो मैं को जब टाइम मिलता था मैं सो जाती थी, तो फिर जब मैं उठती थी तो मैं बहुत एकदम गिल्ट पे रहती थी कि ये वेस्ट कर दिया यार, फिर 1 साल वरना लगाना पड़ जाएगा इस पे। तो फिर जब एग्जाम पास आते गया तो फिर वो अपने आप ही वो ज़ील आ गई, फिर मैंने ऐसा बोर्ड वोर्ड में चिपकाने लिख के रखना शुरू कर दिया, वॉलपेपर बना लिया ताकि वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में आता रहे। फिर मैंने पुश किया अपने आप को कि मैं एग्जाम के ऑफिस के डायरेक्टली बाद ही लाइब्रेरी चले जाऊं, ताकि फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, वंस यू आर इन द लाइब्रेरी यू डोंट हैव द ऑप्शन टू डू एनीथिंग, यू कैन ओनली स्टडी देयर। तो फिर मैंने कुछ चेंजेस किए अपने रूटीन वगैरह में। एक फोटो देखते हैं इनकी लाइब्रेरी की फोटो लाइए जरा, जहाँ पे पढ़नी जाती थी।
तो बताएंगे ये मतलब लाइब्रेरी फोटो से इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ वेरी बिग लाइब्रेरी जो कि बहुत जैसे फेमस लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये कौन सी लाइब्रेरी थी और आपने ये लाइब्रेरी क्यों चूज़ की? एक्चुअली ये मेरी रायपुर में एक लाइब्रेरी था जब मैं SBI PO के पहले जाती थी, वो वाली लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी एक्चुअली रायपुर में ना दो बहुत फेमस लाइब्रेरी, एक है नालंदा विच इज वर्ल्ड फेमस, मतलब लिटरली वो बहुत फेमस है, और सेकंड है सेंट्रल लाइब्रेरी। नालंदा बहुत सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत AC वेसी सब लगा हुआ है, और ये जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पंखे भी बहुत मुश्किल से ही चलते हैं, लाइट बहुत गोल होता है, और सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, पर आई चूज दिस लाइब्रेरी। द रीजन बीइंग कि मेरे सारे फ्रेंड्स नालंदा जाते थे, तो मुझे वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था कि मैं वहां जा रही हूँ तो मैं घंटों उनसे बात कर रही हूँ, या लंच टाइम में मैं उनके साथ ही 2-3 घंटे मेरे वेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने सेंट्रल ज्वाइन किया, जहाँ 1 या 2 ही थे जिनसे मेरी बात होती थी, बस, अदरवाइज नोबडी न्यू मी। ये होता है, यू कैन सी द स्मार्ट टेक्निक शी इज यूजिंग, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर एक ऐसी चीज है ना, आपके हाथ में फोन आ गया तो आप छोड़ नहीं सकते उसे, मतलब जितना भी जरूरी काम हो आपको, आप उसमें खो जाएंगे। सो आपको उसी तरह उसको करना पड़ेगा जैसे शी अवॉइडेड इट ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं कि मैं वहां जाके मैनेज कर लूंगी, मैं फ्रेंड से बात नहीं करूंगी, शी न्यू कि वो होना ही होना है अगर मैं वहां चलेगी। तो उन्होंने बोला भैया मैं AC नहीं चाहिए, मैं फैन के नीचे पढ़ लूंगी, मुझे बस टेबल चाहिए, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है, मुझे RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। अब प्राची की प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राची, यू स्टार्टेड ऑल दिस व्हाइल यू वर इन योर कॉलेज, मतलब आपको तभी से इसका कीड़ा आ गया था कि RBI से भी देना है। इनफैक्ट बैंकिंग से भी पहले, ज़्यादा लोग पहले बैंकिंग देते हैं, इन्होंने पहले RBI से भी का एग्जाम दिया। जब पहले साल वाइल इन कॉलेज यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस RBI से भी और आपका नहीं हुआ, तो कुछ मतलब लर्निंग हुई, कुछ ऐसा धक्का लगा या कोई रियलिटी चेक आया कि यार ये कोई खीर नहीं है जो बना ली और खा ली? हाँ, एकदम ही, मतलब फर्स्ट साइकिल में तो मैंने बैंकिंग का फॉर्म ही नहीं भरा। RBI के लिए आई डिड नॉट प्रिपेयर, उस समय मुझे टाइम भी नहीं मिला, मुझे पता भी नहीं था सच। मैंने सेबी के लिए बहुत इंटेंसिव पढ़ाई की थी, 2 महीने तो मैंने बहुत पढ़ाई की थी सेबी के लिए। उसके बाद भी मेरा मेंस नहीं निकला। तो फिर मुझे ऐसा, और फिर RBI का मैंने पेपर तो दिया ही था, प्री तो दिया ही था मैंने, तो फिर प्री भी नहीं निकला। मुझे ऐसा था कि प्री तो निकल ही जाएगा, मतलब क्वांट रीजनिंग आता है, 10th का आता है, क्या ही करना है उसमें, वो तो निकल जाएगा, हो जाएगा। तो फिर वो नहीं निकला, तो फिर ऐसा मुझे एक ना धक्का लगा, मेरे को 3-4 रात नींद नहीं आई कि इतना इजी तो नहीं है, लाइक मतलब 10-12 जैसा नहीं है ये, बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए आपको, हार्ड वर्क लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत ऐसा आया कि अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आपने RBI ही क्यों कंटिन्यू नहीं किया, आप SBI PO पे क्यों चली गई? वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन, या ऐसा लगा कि अभी SBI PO की अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको दे लो? उसका रीजन ये है कि जो RBI का फेज 1 है, दैट हैज अ लॉट, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन सिमिलर टू बैंकिंग एग्जाम्स। तो एक तो वो प्रिपेयर हो ही जाता फर्स्टली। सेकंड, लाइक आई सेड कि रेगुलेटरी एग्जाम्स में मैं अपना पूरा स्टेक नहीं लगाना चाहती थी। मैं बहुत सेफ खेल रही थी, तो मैंने पहले बैंकिंग दिया, और नॉट जस्ट बैंकिंग, मैंने SBI PO दिया था, IBPS PO दिया था, मैंने IBPS क्लर्क भी दिया था, मैंने SIDBI भी दिया था, ECGC भी दिया था, RBI ग्रेड बी का वो साइकिल का मैंने दिया था जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। उसमें से आई मैनेज टू क्लियर SBI, IBPS क्लर्क एंड SIDBI का इंटरव्यू आई गेव। तो मैंने उस टाइम में जितने आ रहे थे ना, बिकॉज आई हैड सीन फेलियर इन द लास्ट 2 पेपर, और मैंने फॉर्म भरा ही नहीं था आउट ऑफ कि क्या हो जाएगा। इस बार मैंने जितने एग्जाम आए उस समय मैंने सारे एग्जाम दिए, और पढ़ के दिए, बिना पढ़े मैं नहीं देती थी, मैं कोशिश करती थी कि मैं पढ़ के ही जाऊं। तो आपने SBI ज्वाइन किया, फिर ECGC गए, उसके बाद एज यू टोल्ड आपने RBI की तैयारी की, और 2022 के टाइम में आपने RBI का इंटरव्यू दिया। आई मीन दैट वाज अ अचीवमेंट इन इटसेल्फ, ठीक है, कि पहले टाइम में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए, और देन यू रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज। और प्राची मुझे बता रही थी कि एवरीवन इन हर ऑफिस वाज लाइक कि तेरा पक्का निकल जाएगा, इस साल तू RBI जाने वाली है। मतलब होता है ना कि कई बार लोग हमें चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि भाई यू आर नाउ सेटल्ड फॉर लाइफ, ये हो जाएगा, एंड देन सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग इनटू दैट कि हाँ मेरा हो जाएगा, या यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट दैट कि अगर हो गया तो शायद हो ही जाएगा, एंड देन नो इट्स लाइक वन डे एवरीथिंग गॉन। पूरे साल की मेहनत, वो GA पढ़ना, वो क्वांट पढ़ना, वो फेज 2 की तैयारी करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, इंटरव्यू देना, एवरीथिंग लाइक गोज फॉर अ टॉस। तो उस टाइम क्या फीलिंग आई थी प्राची व्हेन यू सॉ दैट इंटरव्यू रिजल्ट?
What was the exact feeling you got at that time? तो उस समय तो I cried in branch. I was working in SBI as a probationary officer. I was in the in the counter, जैसे counters होते हैं ना, वहाँ पे I was sitting. तो I तो literally cried. और उसके बाद दिवाली थी, उसके बाद में सबको मेरी ब्रांच में पता ही था कि इंटरव्यू दे के आई है, फोड़ने वाली है। हाँ, मतलब लोगों को यही लगता है कि अब इंटरव्यू दे दिया तो फाइनल तो हो ही जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो सबको ये फिर वो पता लग भी गया लोगों को कि, तो फिर मुझे ये बोला कि हाँ ठीक है, मैं बोली कि मैं घर जा रही हूँ, आई इमीडिएटली वेंट होम, आई क्राइड इन द ब्रांच इटसेल्फ, एवरीबॉडी न्यू, देन व्हेन आई केम बैक सो एवरीबॉडी वाज वेरी लाइक कि कोई बात नहीं, अभी और बचा है रिजल्ट, तो ECGC आ जाएगा, फिर अगले साल दे देना। तो मन में चाहे खुशी हो रहे हो कि रियली दे वर बॉदर्ड अबाउट योर रिजल्ट। होता है ना कई बार ऑफिस में लोग जेलस भी होते हैं, बट देयर आर पीपल हु रियली सपोर्ट यू। जेलस तो नहीं, बिकॉज आई एम वेरी लकी कि मैं जहाँ भी काम किया, आई हैव बीन द यंगेस्ट एंड आई टॉक अ लॉट, तो आई जेल विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि किसी का नेगेटिव कुछ इमोशन रहा होगा मेरे अगेंस्ट। प्राची, फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि दैट यू विल प्रिपेयर फॉर 2023, मतलब ठीक है, मे बी यू वुड हैव टेकन सम टाइम, बट एक एस्पिरेंट की लाइफ, मतलब वी आर एक्चुअली पुटिंग द प्रीशियस ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, जो हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, दोज आर द प्राइम ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। हम उसमें जब प्रिपरेशन जर्नी में फंस जाते हैं, इट्स वेरी टफ, राइट? आई मीन you cannot come out of it easily because you have made up your mind कि मुझे ये बनना है। तो कितना मुश्किल था आपके लिए टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल, शायद मे बी नॉट फ्रॉम जीरो, बट इफ यू हैव टू रीच 100 इट वाज लाइक यू वुड स्टार्ट फ्रॉम 10, राइट? मतलब वही नई GA पढ़ो, दोबारा क्वांट में मोमेंटम बनाओ। सो मेंटली कितना टफ था? बहुत ज्यादा टफ था। आई वुड से मेंटली दिस वाज द टफेस्ट पार्ट टू स्टार्ट ओवर येट अगेन। ऑल्सो उस समय ये भी था कि आई वॉज शिफ्टिंग टू जयपुर एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज गोइंग टू लिव अलोन अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। आई न्यू नोबडी इन जयपुर बाय दैट टाइम। तो आई हैड टू फाइंड अ हाउस, सेटल इट, फाइंड अ मेड एंड डू एवरीथिंग, बट आई डिड नथिंग। कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, कि सब एग्जाम के बाद देखेंगे। तो वो उस समय जो बहुत ही वो जो, पर वही है कि दैट इज व्हाट आई दैट इज व्हाई आई से कि बिल्ड गुड रिलेशंस अराउंड योरसेल्फ। So like in the extended family also everybody was motivating me कि दो पढ़ाई करो, तुम्हारा तो होगा ही, तुमको हम मतलब ऐसे ही बोलते, तुमको हम यहाँ नहीं देखते, तुम RBI जाओगी, यहाँ हम सोचते ही नहीं है तुमको, ये तो ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। ग्रेट जॉब है, ECGC PO ग्रेट जॉब, SBI PO ग्रेट जॉब। पर लाइक वो देख चुके थे कि मेरे को यहाँ जाना है, तो देवर लाइक दैट ओनली कि ये हमको पता है, ये जाने वाला है, तुमको RBI देखते हैं। फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है, वो बोलेंगे हाँ हाँ क्या जरूरत है, अच्छी खासी जॉब है ECGC PO, so they keep changing because they want to be with you, they want to motivate you. Yeah, नहीं, but everybody in my family, even my friends, like all of us the friends SBI PO में जो थे, सभी प्रिपेयर करते हैं ऑलमोस्ट। सो दे वर द वन, कुछ स्पेशल फ्रेंड्स है, उन्हीं लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अब मैं सो जा रही हूँ अगर आके, तो मुझे डांट रहे हैं, या फिर अगर मैं कहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, अब मैंने मेड तो लगा नहीं रखी थी तब तब तक मैंने कुछ ढूंढना था नहीं, और मान लो अगर मैं घर ही साफ कर रही हूँ तो उसमें मुझे डांट रहे हैं कि ये करना है क्या तुमको, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब बाद में होता रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि चूजिंग राइट पीपल अराउंड यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने ही मुझे पुश किया है। अब तो जो प्राची अभी बोल रही है, मैंने अगर मेड भी नहीं थी, मैं काम करती थी ना, तो प्राची इज RBI ग्रेड बी ऑफिसर, मेड भी मिलेगी, सारे अलाउंसेस मिलेंगे, घर भी मिलेगा। सो दैट इज वाई ना, मतलब एक फेज होता है आपके पास लाइफ में, ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत होती है, एंड देन सडनली व्हेन यू अचीव समथिंग, आपके पास सब कुछ हो जाता है, लेकिन मेहनत फिर भी आपके साथ रहती है। तो वो आपको समझना चाहिए। दीज काइंड ऑफ फेजेस विल कम व्हेन आप शायद वो सक्सेस के बहुत पास होंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, बट मेहनत करना मत छोड़ेगा, बिकॉज द डे आपकी मेहनत और आपका लक कॉम्प्लीमेंट कर गया ना, आई मीन यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्राची, एक और चीज बताइए, अभी हम स्क्रीन पे दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, प्लीज ये दिखाइए। प्राची, आपने कुछ लिख के रखा है, RBI ग्रेड बी ऑफिसर 2023। तो ये आपने पहले लिखा था जब आप बनी नहीं थी। हाँ। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, मतलब ये आपने किस माइंडसेट से लिखा, क्यों लिखा, और इससे आपको क्या फायदा हुआ? बिकॉज
अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो वांट टू नो दिस, मोटिवेशन की बहुत कमी रहती है जनरली प्रिपरेशन फेज में। ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जब मैंने इसी चीज से ज्वाइन किया, आई वाज लाइकिंग द प्लेस, आई वाज लाइकिंग द जॉब, आई वाज लाइकिंग द पीपल। तो वो ना, वो एक कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं आप, तो उससे फिर बाहर निकलना मुश्किल है। लाइक वो फिर आपको फिर बहुत कुछ और बहुत मोटिवेशन चाहिए। तो आई यूज्ड टू सी इट कि मैंने ये सोचा था, मतलब आई स्विच फ्रॉम एसबीआई टू ईसीजीसी। उसका एक रीजन ये भी है कि मेरे को टाइम मिलेगा पढ़ने का, है ना। तो फिर मैं ये भूल ना जाऊं कि जस्ट बिकॉज, तो आई डोंट वांट टू सेटल फॉर एनी लेस। तो ये मुझे बार बार याद दिलाता रहा। और ये मेरे बेड, लाइक आई यूज्ड टू गेट अप, लाइक इफ आई एम सिटिंग इन द बेड, सो दिस वाज द व्यू, ताकि मैं वापस ना सो जाऊं। तो इसलिए मैंने ऐसा सब लिख के रखा था। और मैंने ये वॉलपेपर बना के रखा था, ऐसा लिख के रखा था। मैं घर जो है मेरा रायपुर में, वहां पे भी मैंने ऐसा कबर्ड में लिख के रखा है। तो वो हर जगह जहां जहां भी मेरी नजर पड़े, वहां वहां मुझे ये याद आता रहे कि मुझे पढ़ना वो है। कंसिस्टेंटली रिकॉल होता रहे आपको कि मेरा एंड गोल ये है। और अब बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं सर डिस्ट्रैक्शन है, कंसिस्टेंसी है, यही तो है उसका सोल्यूशन। बाहर कहीं नहीं है, वो फोन में नहीं मिलेगा डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन, वो आपके अंदर ही है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। कुछ स्पेशल नहीं है, उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है। इन्होंने किया है, आप भी कर सकते हैं। प्राची, और क्या करते थे आप? मतलब दिस वाज वन काइंड ऑफ मोटिवेशन टेक्निक यू यूज्ड, बट when you're working and you are not able to make pass the interview stage in the final stage, तो कहीं ना कहीं एक constant मोटिवेशन चाहिए। हर रोज आओ, पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ। तो मोटिवेशन के लिए और क्या चीजें, क्या टेक्निक्स आप यूज करते थे? व्हाट वाज योर वे टू हैंडल दैट, टू consistently मोटिवेट यू? एक्चुअली मैंने ये सोच रखा था स्टार्टिंग से, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो कि मेरे को जितनी जल्दी हो सके इस प्रिपरेशन फेज से बाहर आना है, नो मैटर व्हाट, बहुत सक्सेसफुली बाहर आना है। कि उसके बाद मेरे को ये रिग्रेट ना रहे कि यार उस टाइम ना और थोड़ा पढ़ ली होती तो हो जाता। लाइक माय मदर सेज कि माय मदर वर्क्स इन स्टेट गवर्नमेंट, तो वो ऐसा बोलती कि काश कि मेरे को उस समय पता होता था कि स्टेट पीसीएस भी कुछ होता है या यूपीएससी भी कुछ होता है, तो मैं इतना पढ़ के ना आईएएस बन जाती या वो डीसी बन जाती। तो माय मदर सेज दैट। तो अभी तो मैं वही सोचती थी कि भाई मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास सारा टाइम है, दुनिया जहां का सारा सपोर्ट है, टचवुड। तो फिर आई वांट टू बी एट द टॉप प्लेस वेयर आई एम वर्किंग। लाइक फाइनेंशियल सेक्टर का टॉप प्लेयर है आरबीआई, तो आई वांट टू गो एट द टॉप, ताकि उसके बाद मेरे को कभी भी आगे ऐसा रियलाइजेशन ना हो कि वो मेरे को ना कर लेना चाहिए था। तो इसलिए ही फिर मैंने वो मैं सोचती थी कि और मुझे लगता है कि इन सब एग्जाम्स में 6 महीने की ही मेहनत है। आप 6 महीने अगर बहुत तबीयत से पढ़ लेते हैं तो फिर आपकी पूरी लाइफ सेट है आगे की। सेट है इन द सेंस ब्रॉडर टर्म्स में सेट है आपकी लाइफ। फिर आप यू कैन हैव अ गुड लाइफस्टाइल, यू कैन गिव अ गुड लाइफस्टाइल टू योर फैमिली। एंड एज आई से, आई थिंक कि यू ओन, एंड आई बिलीव दैट ईच वन ऑफ अस, क्योंकि हमारे फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है, वी ओ अ गुड लाइफस्टाइल टू आवर फैमिली। तो अब वो प्लीज करें और इस प्रिपरेशन फेज से जल्दी बाहर आ जाए। यही मेरा मोटिवेशन था। इनका एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंस्पाइट, इन्होंने कुछ सक्सेस भी टेस्ट किए हैं, बट शी हैज आल्सो सीन सम फेल्ड अटेम्प्ट्स, आई वुड से, नॉट फेलियर्स, जहाँ पे अल्टीमेट गोल नहीं अचीव हो रहा था। बट शी इज कंसिस्टेंटली सेइंग वन थिंग, दैट शी ऑलवेज हैड दैट ग्रेटिट्यूड कि मेरे पास सब कुछ है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, आई शुड गिव माई बेस्ट। तो वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग कहीं ना कहीं होनी बहुत जरूरी है। हम ब्लेम करते रहते हैं एनवायरमेंट को, अपने आप को, सोसाइटी को, मोबाइल फोन्स को, कि इनके कारण हमारा नहीं हो रहा है। बट जस्ट फील द ग्रैटिट्यूड अबाउट द थिंग्स यू हैव, एंड देन देयर वुड बी सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। एक चीज और बताइए प्राची, अगर, वैसे तो अब आपका हो गया है, आई एम टॉकिंग ऑन अ नेगेटिव साइड, अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं? दुख मनाते इस बार थोड़ा शायद कम दुख होता, क्योंकि पिछले बार दिवाली का दुख था, इस बार न्यू ईयर पे दुख होता। न्यू ईयर पे दुख होता। पर फिर वही है कि पिछले बार ऐसा था कि मुझे निकलना है एसबीआई से, क्योंकि उस समय थोड़ा ठीक भी नहीं चला था काम मेरा, बहुत ज्यादा कस्टमर वो इंटरेक्शन भी था उसमें, तो मुझे वहां से निकलना था एसबीआई से। नॉट दैट इट्स अ बैड जॉब, बिल्कुल भी नहीं, वेरी लाइक मतलब वेरी ग्रेटफुल कि मेरा वो निकला और मैंने वहाँ काम किया। पर मुझे निकलना था, मुझे कुछ और बेटर जगह जाना था। तो और इस बार मुझे ऐसा था कि ईसीजीसी इज नाइस,
सब बढ़िया है। तो पर ये है कि मेरा वापस से अगर मैं अगले साल देती ना, तो मेरे को 200 टाइम्स ज्यादा एफर्ट लगता खुद को मेंटली प्रिपेयर करने में कि मैं वो पेपर दूं। देती तो मैं तब भी, क्योंकि आसपास के लोग मुझे जाने तो देते नहीं, वो तो बोलते ही कि नहीं 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 पढ़ो, 2 एग्जाम देना तो पड़ता ही मुझको, पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता। बिल्कुल, आई थिंक मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने में चीजें पढ़ने में आसान हो जाती हैं क्योंकि आपने पढ़ रखी हैं, बट वो मेंटल ब्लॉक इतना बढ़ जाता है ना कि उसी चीज को बार बार रेपिटेटिव एंड देन थॉट्स स्टार्ट टू कम टू योर माइंड कि यार नहीं हुआ तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स देके चीजें आसान नहीं होती हैं, दे बिकम टफर। एज शी सेड इट वुड हैव बीन 200 टाइम्स टफर फॉर हर टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो भैया जितनी जल्दी होता है क्रैक कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है। प्राची, आपने इस साल तो एग्जाम क्रैक किया ही है, पिछले साल के कंपैरिजन में इफ यू एनालाइज व्हाट डिड यू डू डिफरेंट? पहले तो ये कि लास्ट ईयर मुझे पता नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज ओनली स्टडिंग। तो मैंने वो उतना उधर दिमाग नहीं लगाया कि क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, कितनी डेप्थ तक पढ़ूँ। इस बार मैंने वो सॉर्ट कर लिया कि मतलब मुझे समझ आ गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे पिछले साल तक मैं स्कीम्स बहुत पुराने भी पढ़ के गई थी, इस बार मैंने सिर्फ आई थिंक 6 महीने बैक के स्कीम्स पढ़े, जो आता है कि मंथली स्कीम्स जो आते हैं वो मैंने पढ़ा, वीडियो से ही पढ़ा पूरा, और वो मैंने बहुत बार बार पढ़ा। लाइक मैंने पुराने नहीं गई मैं, मुझे समझ आ गया कि कहाँ से पेपर आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब मैंने एनालाइज किया इस बार, और इस बार वो मैं करके गई सही से कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली एक वर्ड में कहें तो इट वाज लाइक व्हाट टू स्टडी, यू एक्चुअली फिगर्ड इट आउट, यू फिगर आउट द स्ट्रैटेजी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मतलब वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू रन, आई वुड से all it boils down to that are you going in the right direction. So it's not only about the effort, it has to be supplemented with the right strategy. इसको आप बहुत ध्यान में रखिए। Majority of the RBI Grade B aspirants are not able to clear the exam easily. It's not like कि उनमें effort की कमी है या capability नहीं है, it's just because कि उनको सही hand holding, mentorship या strategy नहीं मिल रही है। तो please hold on to your horses and start your preparation effectively only when you have the right strategy. एग्जाम की ओवरऑल जर्नी में कोई एक चीज, सिर्फ एक चीज which you really think that is undervalued in the minds of the aspirants or the way the students prepare but is extremely important, कि इसके बिना तो या इसके बिना एग्जाम होगा ही नहीं, या फिर ये कर ली तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। I think understanding the way of attempting paper. Understanding the way of attempting the paper. Yes. Please elaborate. Like for example, talking about QRE first. तो उसमें ना मैंने प्रैक्टिस के साथ मैंने ये स्ट्रैटेजी श्योर स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूंगी। लाइक मैंने पूरा सोच लिया था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले करूंगी, ये आएगा तो बाद में करूंगी। मतलब मैंने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना रखा था कि वो कैसे अटेम्प्ट करना है। और मुझे ऐसा लगता है IBPS के एग्जाम्स में स्पेशली जिसमें QRE आता है उसमें ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये फिगर आउट कर लें कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, आपको क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की टू सक्सेस इन QRE, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने पूरी ब्लूप्रिंट बना लिया था कि कैसे आएंगे। लाइक मैंने रीजनिंग में बना लिया था कि पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या अटेम्प्ट करना है। पजल्स में अगर आ गए तो पजल पहले अटेम्प्ट करना है या अरेंजमेंट करना है, उसमें भी फिर लीनियर पहले करना है कि सर्कुलर पहले करना है कि अनसर्टेन पहले करना है। पूरा मैंने बना रखा था, क्वांट में भी इंग्लिश में भी मैंने ये ब्लूप्रिंट में बना के गई थी। गाइज एक इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं आपको विच इज वेरी अनयूजुअल, बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, बट प्राची ने एक डायरी रदर एक पेज दिखाते हैं हम। प्लीज लाइए स्क्रीन पर। प्राची इसके बारे में बताइए, जो आपने ये लिखा है सारा, मुझसे अच्छे से वैसे पढ़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे, बट ये आपने क्या लिखा है, किस स्ट्रैटेजी से लिखा है और ये आप कैसे कैसे बनाते थे? आई थिंक दिस इज समथिंग डिपिक्टिंग कि आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगी, व्हाट यू सेड। तो इसको बनाने का क्या प्रोसीजर था? ऐसा था कि मेरे पास टाइम कम था, मेरा एम भी यही था कि मैं कम टाइम में इस फेज से बाहर निकल जाऊं। और तो इसलिए मैंने 2 या 2.5-3 महीने मैंने रिगरसली लाइब्रेरी में 10 घंटे की सिटिंग लगाना शुरू की। और उस 10 घंटे में मैं 3 मॉक देती थी। मतलब मैंने ये प्लान, मतलब ये रूटीन बना लिया था मैंने कि आई गो टू लाइब्रेरी,
आई प्रैक्टिस सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ताकि नंबर्स के लिए मेरा ऐसा अनयूजुअल सा ना हो जाए कि अचानक से नंबर्स आ गए. टू गेट अ होल्ड ऑफ इट आई यूज टू प्रैक्टिस समथिंग नंबर्स के फेमिलियर होने के लिए. देन आई यूज टू गिव मॉक, एनालाइज, गिव मॉक, एनालाइज, गिव मॉक, एनालाइज. दिस इज ऑल दैट आई यूज टू डू. द रीजन बीइंग कि जब मैं एक बार मॉक देती थी, फिर जब मैं एनालाइज करती थी, तो मैं एक डायरी में ये लिख लेती थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लड रिलेशंस पहले बना रही हूँ तो मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मैं कोडिंग डिकोडिंग पहले बना रही हूँ तो मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, अगर मैं पजल्स पहले बनाती हूँ सबसे पहले तो मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, या अगर मैं सिंपल क्वेश्चंस पहले बना लूँ उसके बाद पजल बनाओ या तो फिर वो कैसे वर्क कर रहे हैं मेरे लिए. बहुत सारे मौके से मैंने ये डिराइव कर लिया था कि मेरे लिए क्या वर्क करता है. तो ये मैंने वो वैसा बनाया था कि एग्जाम में मैं यही फॉलो करूंगी नो मैटर व्हाट. तो ये मतलब एक बार में बन गया था या काफी इटरेशंस करनी पड़ी? बहुत, मतलब आई हैव अ फुल डायरी का पूरा पेज भरा हुआ है स्ट्रैटेजी से ही कि क्या कहाँ पे क्या 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 करना है. तो वैसे आपकी वो डायरी की कीमत बहुत है अभी इस टाइम मार्केट में. बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि प्राची की अगर वो डायरी मिल जाए, आई एम श्योर कि वो कमेंट्स आएंगे. गाइस अगर आपको वो डायरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है? वैसे वो मिलेगी नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. एक्चुअली मैंने लाइब्रेरी में कुछ लोग थे जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने वो उनको दे रखा है कि गुड. तो ऑलरेडी किसी एस्पिरेंट के पास चली गई है, नेक्स्ट ईयर वो क्लियर करेंगे तो शायद आपको वो मिल सकती है. प्राची, हमने फेज 1 के बारे में बात की. नाउ फेज 1 आई थिंक वुड हैव बीन स्टिल लिटिल बिट इजियर फॉर यू, दो इट इज टफ फॉर एवरीवन नाउ, क्योंकि आपने बैंकिंग और ईसीजीसी में तैयारी की है. फेज 2 में आपको चैलेंजेस आए होंगे. अगर मैं फेज 2 में पूछूं ऐसी कौन सी 3 चीजें, व्हाट आर दोस 3 थिंग्स अगेन which are like ignored or undervalued but are extremely important either during preparation or during attempting the exam? फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है, जो मैंने प्रीवियस में भी गलत किया था, कि अंडरस्टैंडिंग इस बात का ये समझ होना कि जो ESI है उसमें आप जितना भी स्टेक लगा ले उसका फ्रूट उतना नहीं आता. मेरे लिए नहीं आता था, क्योंकि मैं अगर बहुत रन करके गई भी हूँ तो भी बहुत चांसेस है कि वो फिगर्स रॉन्ग हो जाएंगे वहाँ पे. तो इसलिए मैंने अपना स्टेक लगाना FM में स्टार्ट कर दिया. तो मैं FM बहुत अच्छे से करने लगी ताकि मेरा एफर्ट वेस्ट ना जाए. पहला तो ये. दूसरा ये, जैसे कि मैंने QRE के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कब क्या कैसे करना है, वैसे ही मैंने फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए बना लिया कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं. अगर उस मिनट में वो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है तो आई पैनिक, आई कंप्लीट इट जैसे भी करके एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वो मैंने बनाया था ताकि मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट करूं. मतलब अगर एक भी आपने क्वेश्चन छोड़ रखा है ना, अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाया तो आप तो वैसे ही गेम से आउट है, कि मतलब फिर कुछ भी इकट्ठा हुआ आप गेम से आउट ही हैं. 10-15 मार्क्स चले गए और कंपटीशन से बाहर ही हैं. और अगर आप थोड़े सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा जो भी पूछा है. तो मैं श्योर करती थी कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, भले ही कम वर्ड्स लिखो, सब में मैंने कम वर्ड्स ही लिखे हैं ऑलमोस्ट, पर मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे. So EduTap has been integrated part of your preparation. आपने बोला FM तो आपने सारा ही यहाँ से पढ़ा, तो आई होप के अच्छा भी लगा होगा आपको. बट ओवरऑल मतलब EduTap किसी भी, हम मतलब मैं EduTap के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ. When an aspirant starts to follow any institute or anyone, any teacher, तो वो क्या चीजें होती हैं जिससे आपको लगता है कि मतलब एक ट्रस्ट आ गया है कि यही मेरा बेड़ा पार कराएगा, दिस इज द वन आई हैव टू फॉलो. यू आर नॉट डाउटिंग दैट पर्सन, दैट इंस्टीट्यूट इवन फॉर अ सेकेंड. तो वो क्या चीजें होती हैं जिससे आपको पूरा ट्रस्ट आ जाता है? बिकॉज आपके लिए ज्यादा स्टेक पर है, आपका करियर स्टेक पर है, राइट? तो वो कौन सा मोमेंट था, या ग्रेजुअली वो कैसे हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार ये लोग सही हैं, इन्हीं का सारा पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है? पहला तो ये कि उस टाइम उतना कुछ था भी नहीं, मतलब तो FM जो है वो तो मुझे लगता है कि उस टाइम से लेकर अभी तक वो जो फ्री की समरी शीट जो घूम रही है टेलीग्राम पे जब ने उससे पढ़ा. मैंने भी FM हमेशा से ही, मतलब लास्ट ईयर भी जब मैंने दिया था तब भी, इस बार भी दिया तब भी, तो मैंने FM वो फ्री के उससे ही पढ़ा है टिल डेट वो मैं वही पढ़ती थी. उसके बाद में मुझे लगता है कि मुझे ना लर्न करने में ईजी होता था वीडियोस देख के. तो जितना भी आपका फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, मुझे लगता है कि मैंने इस साल के और पिछले साल जितना भी फ्री कंटेंट है आप पे, मैंने सब देख रखा है एक नहीं बार. तो मतलब मैं सारे स्कीम्स देख रखी हूँ, मैंने सारे PIB देख रखा है, FM का फाइनेंस का करेंट देख रखा है. तो मैं आपके फ्री के कंटेंट का मैंने बहुत बहुत यूज किया है. और मुझे मेरा मोटिव ये था कि बस लर्न होना चाहिए.
कैसे भी हो, अब वो रीड करके हो, वो देख के हो, लर्न होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बहुत, मुझे इजी लगा बहुत कि मैं लर्न करूँ उससे, तो इसलिए मैंने वो इसी से ही कैरी फॉरवर्ड किया। एडुटैब में फेवरेट टीचर कौन है आप? फाइनेंस में जो करंट अफेयर्स पढ़ाती है मैडम, कृतिका मैम। कृतिका मैडम, हाँ वो बहुत बढ़िया पढ़ाती है, वो लर्न हो जाता है एक ही बार, क्योंकि फाइनेंस करंट अफेयर्स खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल है। टेक्निकल होते हैं हाँ, थोड़े। जार्गन्स बहुत मुश्किल है उसके, तो मैडम बहुत बढ़िया पढ़ा देती है, याद हो जाता है। आपकी इस एंटायर जर्नी में आपका खुद का एफर्ट तो है ही, विच इज लाइक सुप्रीम। आई मीन नोबडी कैन से के आपके एफर्ट, खुद के एफर्ट के बिना कोई कुछ कर सकता है। टिल दैट मोमेंट यू शो इंटेंट, आई मीन इवन द बेस्ट कोर्स, इवन द बेस्ट टीचर्स कैन नॉट हेल्प यू, बट इवन विद योर एफर्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर्स इन द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी? मुझे ऐसा लगता है कि मेंटोरशिप से आपकी ना जो जर्नी इजी हो जाती है, पहला ये। दूसरा, ये जो प्रिपरेशन फेज है वो शॉर्ट हो जाता है। रीजन बीइंग कि अगर आप सब कुछ खुद से कर रहे हैं, लाइक आई नेवर रेड अ न्यूज़पेपर, मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाया, जो फ्री में मिल गया कंटेंट, पीडीएफ मिल गई टेलीग्राम से, कुछ भी मिल गया तो मैं उससे पढ़ लेती थी। तो उसका रीजन यही था कि अगर मैं खुद से करने लगी तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, पूरा 1 साल का प्रोसेस हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब ऑलरेडी समबडी करके दे ही रहा है कोई, तो क्यों ही मेहनत करनी है। एक नहीं, और मतलब इतने सारे लोग करके दे रहे हैं, जर्नी को हाँ आसान बनाया जाए। एग्जैक्टली। और ऐसा भी है कि जितना भी स्ट्रैटेजी मैंने बनाया या जैसा भी मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करूंगी, वो पूरा ही मैंने यूट्यूब से सीखा है। किसी टीचर का कुछ उठाया है, किसी इंस्टीट्यूट का कुछ उठाया है, किसी का कुछ उठाया है, तो जिसका जो मेरे को लगा कि मेरे पे फिट बैठेगा, वो मैंने पूरा ही, मतलब यूट्यूब हैज बीन माई यूनिवर्सिटी फॉर दैट, तो इसलिए मैंने वहीं से ही सीखा है। अब थोड़ा सा ड्यूरिंग दिस लास्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर इंटरव्यू एट आरबीआई। Okay. कहाँ हुआ था वो? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में। Yeah. तो कैसी फीलिंग थी? बिकॉज जब हम एक बार किसी स्टेज पे जाके रह जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि दूध का जला लस्सी को भी फूक फूक कर पीता है, हिंदी में कहावत है। तो मतलब आपको शायद कॉन्फिडेंस होगा कि फेज 2 तो मैं निकाल ही लूंगी, जो पिछली बार निकाल लिया था कि ठीक ठाक अगर पढ़ लिया, बट कॉन्फिडेंस तो ऐसा नहीं था, मतलब लगा था कि हाँ, मतलब ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मतलब जब आप एक बार कर लेते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एक बार कर चुकी हूँ, सो आई कैन यूज द सेम स्ट्रैटेजी एंड क्रैक इट अगेन। दैट्स व्हाट इज द गेम विथ आरबीआई, कि दे चेंज एवरी ईयर, तो यू कैन लाइक, इस बार का ये सही डिस्क्रिप्टिव वाज नेक्स्ट लेवल, बहुत ही टफ था। तो बट पता नहीं क्यों ऐसा सबकॉन्शियस लगा था कि क्या हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ तो लिख ही देते हैं। हाँ, कुछ मैं अटेम्प्ट तो मैं पूरा कराती हूँ जीए में भी मैं अटेम्प्ट तो ऑलमोस्ट पूरा ही कराती हूँ। तो इंटरव्यू में पर कोई ऐसी स्पेशल फीलिंग थी कि यार इस साल भी अगर कम नंबर आ गए या फिर नहीं हुआ तो वही फिर डर कि दोबारा स्टार्ट करना लाइक हेल? एक्चुअली हुआ ये था कि इंटरव्यू के पहले मैं घर चली गई थी, तो मैं एकदम ही रिलैक्स हो गई कि मतलब फिर मैंने उस समय पढ़ा भी नहीं, मैं बस घूम फिर रही हूँ। और फिर जब मैं इंटरव्यू गई तो फिर वहाँ पे आई वॉज मोर क्यूरियस, आई वॉज वेयरिंग साड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज मोर क्यूरियस अबाउट दिस कि मतलब साड़ी ठीक है, सही लग रही हूँ और मैं बहुत चिल एटीट्यूड से गई भी थी अंदर, और इसलिए शायद मतलब मैंने बात भी बहुत ही नॉर्मली की उनसे, मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल नर्वस दिस टाइम, तो मे बी शायद दैट हेल्प। क्या पूछा उन्होंने फिर आपसे? पहले तो नहीं एक्चुअली तो दे वांटेड टू टेक अ स्ट्रेस टेस्ट, आई थिंक सो। तो व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, तो मैं बैठी भी नहीं थी उस समय, और मुझसे चेयरमैन सर जो हैं श्रीवास्तव सर, वो मुझे बोलते हैं 6 months in SBI, 6 months in ECGC, you are doing injustice to the organizations, why are you doing this? To which I'm still standing, na, I've not sat, like I've not become comfortable and all. To which I said, sir, I got better career opportunity, so I switched. तो like मैं वैसे ही chill mood से ही गई थी। हाँ, कोई भी करेगा। हाँ, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक सही आंसर ना भी हो। तो फिर सर सिंगल सर बोले कि how can ECGC be a better career opportunity than SBI? You know, the career progression in SBI is unmatchable. Even he only said that ki SBI is even better than RBI in terms of career progression. To which I said, sir, ECGC is also not that bad. Like, the chairman of ECGC is EO only. Like, the executive officer only, got promoted till the chairman. So, to which he said something, and to which I think Sudhir sir then intervened and said that you gave interview last year and started asking about do you remember the faces and all the so फिर वो नहीं अलग था, मतलब कुछ सिंगल सर तो सेम ही थे और मोस्टली अलग ही थे, मतलब सिंगल सर वाज द वन दैट आई रिमेम्बर जो लास्ट टाइम ही थे।
तो उसके बाद क्या पूछा उन्होंने? आ, Main areas? हाँ, उसके बाद एचआर में एक और से उन्होंने पूछा था कि इतना ही फ्रीक्वेंट स्विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन एनी इंटरव्यू, हाँ, हाँ. सो तो उनको मैंने यही बोला कि सर आई हैव ऑलवेज बीन अप टू joining RBI. Ever since I have been eligible, I have been giving exams, and I'm not getting through. So they started asking about ECGC. They asked me they were asking very technical questions to me. मतलब ऐसा नहीं था कि वो ऐसा सिर्फ definition types पूछ रहे हैं, वो बहुत analytical पूछ They रहे were थे going somewhere deep into the knowledge. Yeah, the understanding part they were focusing a lot. Even for ECGC, फिर SBI के लिए भी उन्होंने बहुत understanding वाली मुझसे पूछी. फिर वही फाइनेंस ये सब ओवरऑल फिर सबका ही कुछ ना कुछ एक पैनल मेंबर ने पूछ लिया. कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? कम ही था, आई थिंक 15 मिनट चला होगा. So you were happy after the interview कि ठीक गया? आई वाज रिलैक्स्ड कि मतलब चलो ठीक है, हो गया. अब नहीं है कुछ पढ़ने को. अब घूम सकते हैं. अभी 20-40-50 दिन तो रिजल्ट नहीं आएगा तो चिल मारो. चिल मारेंगे. तो इंटरव्यूज आर ऑलवेज सपोज टू बी लाइक दैट. यू नेवर नो. आई मीन कुछ लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, मतलब वो किस डायरेक्शन में चला जाए यू विल नेवर बी अवेयर अबाउट दैट. तो ठीक है, मतलब चिल रहना चाहिए एंड बी ऑनेस्ट. जो प्राची ने किया है, आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ बेटर तो नहीं होगा, नंबर कम ही होंगे. प्राची, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड देन टू द लास्ट क्वेश्चन. कुछ प्लान्स हैं अभी कुछ आगे करने का? मतलब वैसे तो आई मीन इट्स लाइक द पिनेकल ऑफ योर कैरियर ना हो कि आप आरबीआई ग्रेड बी क्रैक कर चुके हैं. आरबीआई में एक अच्छी जर्नी रहने वाली है. बट स्टिल आई नो लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स जो आगे पार्ट टाइम MBA करते हैं डिस्टेंस से या फिर कुछ और सर्टिफिकेशंस करते हैं. हैव यू हैड एनी प्लान्स प्रीवियसली कि आगे जाके ये करूँगी, या अभी चिल मोड है कि नहीं यार अभी बस ये जो प्रेशियस ईयर है लाइफ के इनको अभी इंजॉय करना है, बाद में देखेंगे क्या करना है? MBA तो करना ही है पर अभी नहीं करना है. अभी 3-4 साल फुल मजे करने हैं, घूमना फिरना है, एक्सप्लोर करना है, चिल मारना है, रिलैक्स करना है. मैं बहुत वेट करी थी एवर सिंस आई हैव ग्रेजुएटेड. तो मैंने तो सिर्फ पढ़ाई है, लाइक मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस जब तक वो पहुंच नहीं जाते कहीं वो पढ़ते ही हैं. तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं कुछ और भी कर सकूं, हॉबी एक्सप्लोर करूं, तो मैं अभी वैसा भी करना. यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई कैन वाउच फॉर दैट. प्राची मेरे से पूछ रही थोड़ी देर पहले, सर आपको बहुत सारे RBI ऑफिसर्स जानते होंगे. I said yes, और मैं उसी एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जितना वो घूमते हैं, मतलब मैं तो उसका शायद 1/10 भी नहीं घूम पाता हूँ. और उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो वर्कलोड थोड़ा बैलेंस्ड है, सो दे गेट टाइम दिसंबर जुलाई व्हेन देयर हॉलीडेज, मतलब फॉर द किड्स एंड ऑल. बाकी दे पे यू दैट LTA एंड ऑल. ठीक है, तो एक अंदर इंटरनल मोटिवेशन तो रहता ही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, पैसे आ रहे हैं कि भैया घूमने जाना है एंड यू हैव टाइम. सो दैट इज ऑल यू नीड. सो वो आपका शायद बिल्कुल पूरा होने वाला है. लास्ट क्वेश्चन प्राची, मतलब व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द एस्पिरेंट्स जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं यार, मतलब अपनी प्रिपरेशन को लेके. मेरे तो गैप ईयर्स हैं, मैं तो वर्किंग हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं आके सो जाता हूँ, मेरा तो फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ. इट्स वेरी हार्ड टू प्रिपेयर वंस यू हैव सेल्फ डाउट, राइट? आई मीन तो आप अंदर ही धंसते चले जाते हो. आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक आपका प्रोफाइल उनसे कहीं ना कहीं मैच करता है. आई मीन आप कोई ऐसा IIM IIT से नहीं है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है. सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्टली तो ये कि बहुत वाइजली पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको ये करना है कि नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल. और एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना, फिर मत छोड़ना. कि फिर अगर आप, बहुत लोग होते हैं कि बैंकिंग पहले करते हैं, फिर नहीं होता तो दूसरे जगह चले जाते हैं. तो पहले तो बहुत वाइजली आप डिसाइड कर लें. सेकेंड, कर लिए तो फिर छोड़ना मत. एंड थर्ड, बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. लाइक मैंने बैंकिंग का स्टार्ट ही इसलिए किया, रेगुलेटरी बॉडीज साइड में रख के कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे पता था आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. तो बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और खुद से झूठ मत बोलिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रिपेयर्ड है नहीं प्रिपेयर्ड है. तो गेज योरसेल्फ, मतलब समझ लीजिए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद गो अहेड. या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप बैंकिंग में स्विच कर लीजिए. फिर आप PO पेपर भरिए, आप क्लरिकल पेपर पढ़िए, नथिंग बैड इन दिस. तो दिस इज व्हाट आई वुड से. थिंक व्हाट अ ग्रेट मैसेज. ध्यान से 3 बार सुनिएगा, यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ एंड यू शुड हैव प्लान्स लाइक दिस. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन प्राची. इट वाज इंडीड एन ऑनर. मतलब बहुत खुशी होती है गाइस, मैं क्या बताऊं कि जब कोई
आता है और बोलता है कि आपकी टीम ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हेल्प की जर्नी में, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि हमने सिलेक्शन करा दिया, इन्होंने सिलेक्शन लिया, वी वर जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन दैट जर्नी, वी वर जस्ट फैसिलिटेटर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, देयर एफर्ट, एंड इन बिटवीन ऑल दीज आई थिंक एक छोटा सा बिंदु हमारा भी है. आई एम ग्लैड अबाउट दैट एंड आई विश हर बेस्ट ऑफ लक. एंड प्राची, मिलते रहना, मैं यही बोलूँगा. मुझे जो भी मिलने आता है वो बोलते हैं हम मिलेंगे, बट कोई नहीं मिलता है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ. मिलते हैं तब जब उनकी पोस्टिंग होती है चंडीगढ़, तब जरूर मिलते हैं. एंड आई मीन लॉट ऑफ पीपल हु आर इन चंडीगढ़ राइट नाउ, जिन्होंने बहुत पहले क्रैक किया, ट्रांसफर लेके आए हैं. सो आई विश कि आप भी कभी चंडीगढ़ आए. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी वैसे, एंड यू विल एंजॉय योर स्टे हियर. Thank you. Thank you so much for having me here. It's been a pleasure. You know, it's really surreal to have watched all the videos. मैंने इतना यूज किया आपका फ्री कंटेंट. I have exported all your free contents. और फिर अभी मैंने सारी फैकल्टी से भी मैं मिली, तो it was very like अच्छा इनको वीडियोस में देखा है मैंने बहुत. I know कि वो कैसे बात करते हैं. है ना, मैंने इतना सुना है उनको 2x पे, कि मुझे पता है वो किस तरीके से बात करते हैं. या वो जैसे जो सर है PIB पढ़ता है, वो बहुत जी बोल के बात करते हैं. हाँ. तो ये याद कीजिएगा जी. हाँ, एग्जैक्टली. तो अभी मैं उनसे मिली तो मुझे काफी सही लगा, मतलब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. It's such a nice feeling. Thank you. Thank you so much.